Hello everyone. Today we are going to learn next chemical reaction of a alcohol molecule. In last class we already study about the chemical reaction of alcohol due to OH bond cleavage. Due to OH bond cleavage in alcohol molecule, due to OH molecule reaction, nature of a alcohol is a acidic. For example, reaction of a alcohol with a reactive metal or alkali metal like sodium, then due to OH bond cleavage reaction, hydrogen gas remove from here half H2 and a sodium alkoxide molecule will form. We already study about this reaction. In this reaction, alcohol molecule reacts with the sodium metal. Then in alcohol, due to OH bond cleavage, hydrogen gas remove from here and sodium alkoxide molecule will form. Sodium alkoxide as a salt, because in this reaction sodium is alkali metal, ROH acid, then sodium alkoxide will form. एक बात बेटा मैंने आपको बताई भी थी ये पहले भी, इंडिविजुअली अगर हम अल्कोहल की बात करेंगे तो वहां पर अल्कोहल न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा अगर इंडिविजुअल बात करेंगे तो, बट अगर कंपेयर में अल्कोहल के ही मॉलिक्यूल हम साथ में लेके चल रहे हैं तो वहां पे हम बेसिक स्ट्रेंथ की बातें समझा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन और देखें. सेम रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद पोटेशियम मेटल, देन पोटेशियम अल्कोक्साइड विल फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस विल रिमूव. ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, पहले ही बता भी चुका हूं आपको. नाउ reaction of a alcohol molecule with a metal hydride. Metal hydride, हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन को बेटा पीरियोडिक टेबल का जोकर कहते हैं. रीजन इसका ये है, हाइड्रोजन एस ब्लॉक में भी मिलेगा. रीजन इसका क्या होगा एस ब्लॉक में आने का? ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फिल इन एस ए सबसेल. पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन 14th ब्लॉक में भी हो सकती है, 14th ग्रुप में भी हो सकती है, 17th ग्रुप में भी हो सकती है. 14 ग्रुप में होने का रीज़न क्या होगा? हाइड्रोजन एटम की आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं अगर उतने ही फिल करवा दें तो ये अपने एक स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा. ठीक उसी प्रकार से 14th ब्लॉक के जो भी एलिमेंट है उनकी आउटर मोस्ट सेल में अगर हम उतने ही इलेक्ट्रॉन और फिल कर दें जितना उसके आउटर मोस्ट सेल में है तो वो भी अपने ऑक्टेंट को कंप्लीट करते हैं, अपनी स्टेबिलिटी में आते हैं. तो इस अकॉर्डिंग हाइड्रोजन 14th ब्लॉक में भी हो सकता है. 17th ब्लॉक की बात करूं मैं, 17th ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उनकी आउटर मोस्ट सेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन को फिल करवा दें तो वो भी अपने ऑक्टेंट स्टेबिलिटी को शो करवाते हैं. ठीक उसी प्रकार से हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को एंटर करवा दें तो वो भी स्टेबिलिटी आ जाएगी. तो इस बेस पे सबसे पहली बात तो ये देखना आप इसमें, हाइड्रोजन shows the both oxidation number H plus and H minus. If hydrogen present in H plus, then another name of H plus is proton and it's called H plus or proton. But if on hydrogen atom negative charge
-1 oxidation number is present, then it's called hydride. It's called hydride. If hydrogen atom attached with the metal, if a hydrogen atom attached with metal, then hydrogen always shows the negative oxidation number, -1 oxidation number, and in this case hydrogen called hydride, because metal have always deficiency of electron or always positive number oxidation number. But if hydrogen atom attached with non-metal, then hydrogen may be positive or may be negative. For example, we have two molecules HCl and NaH. In NaH molecule, hydrogen atom attached with sodium metal. Sodium is metal and hydrogen non-metal. Means En of hydrogen more than a sodium atom. So name of NaH is sodium hydride, because here hydrogen shows the -1 oxidation number. But in HCl molecule, hydrogen atom attached with non-metal and En of chlorine more than hydrogen atom. So this hydrogen is not hydride, and the name of HCl is hydrogen chloride. Hydrogen chloride. नाउ रिएक्शन पे आए अपनी पे हम, मैंने लिखा है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल विद मेटल हाइड्राइड. मेटल लेस En एलिमेंट, हाइड्रोजन मोर En एलिमेंट, इट मीन्स हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्राइड. सो रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद सोडियम हाइड्राइड, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद पोटेशियम हाइड्राइड, both reaction create the alkoxide compound RONA and ROK, but a hydrogen molecule will remove one hydrogen in hydride present and one in alcohol molecule. Both reaction shows the acidic nature of alcohol, because in both reaction hydrogen atom remove like a H plus or proton ion. ओके, थर्ड रिएक्शन देखना बेटा. रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड. रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. अनदर नेम ऑफ इट्स एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. मीन्स इस रिएक्शन से एस्टर को फॉर्म करना हमें. क्या होगा रिएक्शन को देखना. रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड. रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एस्टर विल फॉर्म. बट ध्यान से देखना बेटा, यहां जो इंपॉर्टेंस है रिएक्शन का वो क्या होगा. रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एस्टर विल फॉर्म एंड बाय प्रोडक्ट H2O विल फॉर्म. बट दिस रिएक्शन इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन. इट्स ए रिवर्सिबल रिएक्शन. अब रिवर्सिबल का मीन्स क्या होगा, एस्टर और वाटर जो फॉर्म होंगे वो वापस अपने रिएक्टेंट अल्कोहल और एसिड में कन्वर्ट हो सकते हैं. तो रिएक्शन को इरिवर्सिबल करने के लिए, ये रिएक्शन तो रिवर्सिबल है, इसको इरिवर्सिबल मीन्स से हमें एस्टर ही फॉर्म करना है यहाँ पे, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4. कंसंट्रेटेड H2SO4. ये कंसंट्रेट H2SO4 क्या करेगा, यहाँ पे H2SO4 जो कंसंट्रेट यूज किया है, ये बनने वाला जो प्रोडक्ट H2O है, वाटर है, उस वाटर को ये एब्जॉर्ब करेगा. और एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, तो इसको हमें एक लॉ होता है ली-चैटलीज लॉ, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं. एक्चुअल में ली-चैटलीज लॉ क्या एक्सप्लेन करता है
कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को अगर आप फॉरवर्ड चाहते हो, फॉरवर्ड मीन्स अगर आप उसमें प्रोडक्ट को मोर अमाउंट में चाहते हो, तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशन को फॉलो करना होगा। सबसे पहले कंडीशन तो ये होगी कि आप उसमें या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करिए। क्या करना है? या तो उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करिए, तब आपका रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। सेकंड, या फिर इसमें से आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करिए। क्या बोला मैंने? या तो आप रिएक्टेंट जो है उसको इंक्रीज करिए, या फिर प्रोडक्ट जो है उसके कंसंट्रेशन को क्या करिए? डिक्रीज करिए। इन दोनों से एक्चुअल में क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी। क्योंकि जो ला चैटलिज ला है वो एक्सप्लेन क्या करता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को आप अगर फॉरवर्ड ले जाना चाहते हो तो वो रिएक्शन तभी फॉरवर्ड हो पाएगी जब उसमें आप क्या करोगे? प्रोडक्ट को डिक्रीज करोगे, रिएक्टेंट को इंक्रीज करोगे, और अगर उसमें टेम्परेचर की भी अगर कोई बात आ जाए तो आप उसके लिए एक बात और ध्यान रखोगे, अगर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक टाइप की है, अगर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक टाइप की है, उसको आप फॉरवर्ड चाहते हो तो उसका आप टेम्परेचर क्या करिए? डिक्रीज करिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड तभी हो पाती है जब उसका टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। और अगर एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है तो आप उसका जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वो रिएक्शन उतना ही फॉरवर्ड होगी। तो इस ला चैटलिज लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि हमें एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में एस्टर को फॉर्म करना है, और वो एस्टर फॉर्म तभी हो पाएगा, अदरवाइज तो देखो रिएक्शन रिवर्सिबल बताइए मैंने पहले। अगर आपने ये एक डिहाइड्रेंट को यूज नहीं किया, यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेंट है, ये क्या करेगा? प्रोडक्ट जो H2O बना है उस H2O को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और ला चैटलिज लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, और फॉरवर्ड होगी तो आपके सामने क्या फॉर्म हो जाएगा? यहाँ पे एस्टर प्रोडक्ट। मेन से रिएक्शन को एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, देन ड्यू टू irreversible process ester and byproduct H2O will form. In this reaction, concentrate H2SO4 absorb the H2O molecule, then reaction go forward and ester will form. It's called esterification reaction or reaction of alcohol with carboxylic acid. ओके बेटा, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू।